Hello students, this side Preet Kamal. Today we will be discussing about the CPUC subject, that is computer programming using C. And like in the previous lecture we have discussed about the array of characters, that how we make the characters as an array, or how we make a character array, so that we could write some names of some persons, of some authors, of some books, or some anything that could be written as a name or as a string of alphabets, that is called as words or sentences. And we have also discussed that how the array of characters work, how they are initialized. They are also called as strings, and they can be initialized, or they could be scanned with the help of scanf and as well as gets. But scanf has some disadvantages, that is, after the space it couldn't occupy the next word, whatever is written after the space. It there is a limitation of scanf, that it could not read after the space is given in a name or in a sentence or anything whatever you are writing, right? But so for that purpose and for overcoming that limitation, we use the string uh, syntax, that is gets. Gets, gets, right? And in gets we could scan all the complete word or sentence, whatever you have written and whatever you have entered in case of your arrays, right? So in this particular lecture, we will discuss about how strings work, how they are being utilized, how they can be converted from one string to another, from uppercase to lowercase, from if we want to copy the strings from one destination to another, how it could be done, how is it performed. And if we want to concatenate means add up, means like, for example, in string 1 I have written, say, hello, and in string 2 I have written, I am Johnny, right? So how to add up all those two strings, concatenate string 1 and string 2, so that the result could be hello, I am Johnny. It should be together, right? So this is what we will be discussing in this particular lecture, in this particular video. So let's start. The strings in C language, right? How these strings are string handling functions, that how the strings are getting handled in case of the functions. So string needs to be manipulated by the programmer, and it can be done manually, but it is टाइम कंज्यूमिंग, राइट? तो स्ट्रिंग्स जो हैं, अगर हम उनको हैंडल करते हैं, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट? बट यहाँ पे क्या है कि स्ट्रिंग्स जो हैं उनको मैनिपुलेट करना पड़ता है थोड़े बहुत प्रोग्रामर के हिसाब से, सो दैट कि मैनुअली इनको हम चेंज कर सके अपने अकॉर्डिंगली, राइट? सो अगर हम लेंथ काउंट करना चाहते हैं, यहाँ पे अब हम क्या पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग्स जो हैं उनको हम यूज किस तरह से कर सकते हैं, राइट? तो स्ट्रिंग को हमें एंटर करना आ गया, इनपुट करना पता चल गया हमें किस तरह से हम स्ट्रिंग्स को इनपुट करते हैं, राइट? उन्हें कैरेक्टर इनपुट स्ट्रिंग जो भी उसका नाम देना है, उसके बाद ब्रैकेट में उसका साइज देना है, एंड देन आफ्टर उसको हम फॉर लूप के साथ या वाइल लूप के साथ हम लोग उसको आई प्लस प्लस करके उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें कुछ एड ऑन्स कर सकते हैं, उसमें कुछ सब्ट्रैक्शंस कर सकते हैं, राइट? तो अगर हमें एक स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करनी है, दैट मीन्स कि मैंने कोई स्ट्रिंग एंटर करवाई, प्रिंट एफ करा, स्कैन एफ करा या गेट्स करके कोई स्ट्रिंग एंटर करवा ली, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है कि उसमें कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इंक्लूडिंग स्पेसेस, इंक्लूडिंग वट एवर यू आर एंटरिंग, ठीक है? उसमें कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, राइट? तो अब हम उसकी लेंथ अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, कि मैंने मान लो नाम लिखा से राम स्पेस कुमार, तो उसमें कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं, RAM स्पेस KUMAR, टोटल 9, राइट? तो वो स्ट्रिंग की लेंथ वहां पे 9 शो होनी चाहिए, राइट? तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं छोटा सा। तो इसके लिए स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं अलग अलग, तो उनको भी हम यूज कर सकते हैं, या सिंपली भी हम इससे निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हैश इंक्लूड str.h conio.h, वो चीज लगा ली, उसके बाद void main किया, करेक्ट जो हमारा कर्ली ब्रेसेस है उसको स्टार्ट किया, कैरेक्टर इनपुट अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ये उसका नाम लिख दिया हमने, और उसकी टोटल मैक्सिमम लेंथ बना ली 50,
अब हमें एक है इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो एंड लेंथ इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब हमने दो अल्फाबेट्स, दो वेरिएबल्स लिए, जिसमें से एक लिया हम लोगों ने ताकि हम इस के साइज को वेरी करवा सकें फ्रॉम जीरो टू अप टू लास्ट मोमेंट, राइट। और सेकंड हमने कैरेक्टर सॉरी वेरिएबल लिया लेंथ, जिसमें हम लेंथ कैलकुलेट कर सकें, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। उसके बाद क्लियर स्क्रीन किया, क्लियर स्क्रीन से जो पुरानी आउटपुट स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमने किया प्रिंट एफ एंटर योर टेक्स्ट, गेट्स में हमने इनपुट स्ट्रिंग जो इस वैल्यू में थी, जो ये वेरिएबल था हमारा कैरेक्टर टाइप का, उसको गेट्स में डाल के हमने उसकी वैल्यू को गेट कर लिया जो भी आपने एंटर किया टेक्स्ट। तो अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एंटर हो गया आप लोगों का, उसके बाद क्या होगा, वाइल लूप लगाई। वाइल लूप में हम क्या कर रहे हैं, इनपुट स्ट्रिंग आई, ठीक है, आई की वैल्यू बार बार हम प्लस करते चले जाएंगे राइट जब तक उसकी वैल्यू, सबसे पहले इनिशियली उसकी वैल्यू जीरो है, हमने यहाँ पे जीरो दिया, तो इनपुट स्ट्रिंग जीरो नॉट इक्वल टू, ये क्या है, दिस इज बैक स्लैश जीरो, दैट मीन्स नल कैरेक्टर। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग एंटर करेंगे उसमें बाय डिफॉल्ट लास्ट जो कैरेक्टर होगा वो आप लोगों का नल कैरेक्टर होगा। तो अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग, वी आर चेकिंग वाइल, जब तक इनपुट स्ट्रिंग की वैल्यू आई प्लस प्लस कर रहे हैं तो आई जीरो वन टू थ्री, कौन सी वैल्यू, नॉट इक्वल टू, जब तक नॉट इक्वल टू है नल कैरेक्टर के, तब तक क्या करो, लेंथ को प्लस प्लस करते रहो, आई को प्लस प्लस करते रहो, ठीक है। आई प्लस प्लस करेंगे यहाँ पे जीरो आ जाएगा, लेंथ को प्लस प्लस करते रहेंगे, लेंथ जीरो था वन हो जाएगी, फिर टू थ्री फोर, जब तक नल कैरेक्टर नहीं आता तब तक ये लूप चलती रहेगी। तो जब तक ये लूप चलती रहेगी तब तक आपकी लेंथ की वैल्यू इंक्रीज करती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग मान लो एंटर किया राम कुमार, तो आफ्टर नाइन यहाँ पे जब आ जाएगा, टोटल नाइन है, तो यहाँ पे जब एट आ जाएगा तो आपका ये नल कैरेक्टर एट के बाद नाइन्थ पॉइंट पे नल कैरेक्टर आ जाएगा। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो जो आपका आउटपुट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो लेंथ क्या हो रही थी, यहाँ पे जीरो स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ पे लेंथ जीरो से सबसे पहले क्या हो गई, वन, फिर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। जैसे ही लेंथ की वैल्यू हुई नाइन, आई की वैल्यू भी हुई नाइन, यहाँ पे हुई नाइन, ये जब यहाँ पे एट था जब तक, तब तक वो वैल्यू चल रही थी। जब यहाँ पर नाइन आया तो आपका नल कैरेक्टर आ गया, नल कैरेक्टर आ गया तो ये वाइल जो कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई, वाइल कंडीशन फॉल्स होगी तो अब लेंथ की जो लेंथ प्लस प्लस हो चुकी है ऑलरेडी, जिसकी वैल्यू नाइन ऑलरेडी हो चुकी है, अब ये लेंथ और नहीं बढ़ेगी और यहाँ पे ये सीधा जो लूप है वो लूप से बाहर आ जाएगा। कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका जो कर्सर है, जो आपका कंट्रोल है प्रोग्राम का, वो आपके लूप से बाहर आ जाएगा। तो लूप से बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट एफ द लेंथ ऑफ योर टेक्स्ट इज परसेंटेज डी कैरेक्टर्स, इतने कैरेक्टर्स हैं, राइट। तो यहाँ परसेंटेज डी की जगह पे कौन सी वैल्यू शो होगी, लेंथ की वैल्यू यहाँ परसेंटेज डी की जगह पे शो होगी। दैट मीन्स कि आपकी आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा, द लेंथ ऑफ योर टेक्स्ट इज कॉलन नाइन कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल नाइन है तो नाइन कैरेक्टर्स, टेन है तो टेन, ट्वेंटी है तो ट्वेंटी, वट एवर जो भी यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो विदाउट यूजिंग यार स्ट्रिंग फंक्शंस, हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शंस भी होते हैं बहुत सारे, तो फिर स्ट्रिंग फंक्शन को यूज किए बिना भी आप स्ट्रिंग के लेंथ एटलीस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो गेट सी एच के साथ हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लो अगर हमने कॉपी करना है वन स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है कॉपी और पेस्ट। यहाँ पे हमने दो कैरेक्टर्स ले लिए, कॉपी पेस्ट, इंट आई लिया, क्लियर स्क्रीन किया, एंटर योर नेम या कुछ भी आप एंटर करो, कोई भी टेक्स्ट, गेट्स कॉपी, कॉपी में उसको ले लो, फिर उसके बाद आई इज इक्वल टू जीरो, कॉपी नॉट इक्वल टू यहाँ पे है तो आई प्लस प्लस करते जाओ और कॉपी वाले कंटेंट्स को पेस्ट में डालते जाओ। जब पेस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी नल कैरेक्टर के इक्वल आ जाए तो नेम इज पेस्टेड एज पुट्स में पेस्ट, तो पेस्ट की जो भी वैल्यू है उसको शो कर दो वहां पे। तो गेट सी एच, तो दिस वाज क्या, कॉपी किस तरह से करना है आपने वन स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर किस तरह से आपने कॉपी करना है, सिर्फ बाकी सारा कुछ बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे आपने वाइल की जगह पे फॉर लूप लगाई और फॉर लूप में कंडीशन क्या डाली कि जब तक कॉपी की वैल्यू नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं हो जाती तब तक कॉपी की जो भी वैल्यू है, कॉपी जीरो पेस्ट जीरो में, कॉपी वन पेस्ट वन में, कॉपी टू पेस्ट टू में, तो ये सारा पेस्ट में ज्यादा जाएगा। फिर पेस्ट की वैल्यू जब नल कैरेक्टर के इक्वल हो जाएगी नेक्स्ट वाले आय पे, तो अब क्या होगा, नेम इज पेस्टेड एज पुट्स पेस्ट, जो पेस्ट में जो भी वैल्यू आई है इस तरह से वो हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देखिए
These are various string handling functions defined in string.h, राइट? तो हमारे पास जैसे stdio.h लाइब्रेरी हेडर फाइल है, conio.h है, उसी तरह से string.h भी एक स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन और यू कैन से द लाइब्रेरी फंक्शन है फॉर द स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग्स के लिए है ये। अब उसमें जैसे हमने अभी दो प्रोग्राम्स किए जिसमें हम स्ट्रिंग्स को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में, या उसकी लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, उन सब के लिए स्ट्रिंग फंक्शंस ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर हम इतना लंबा प्रोग्राम नहीं बनाना चाहते हैं तो हम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस को स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड करके उनको हम यूज कर सकते हैं, और उनके साथ हम अपनी जो स्ट्रिंग्स हैं उनके बहुत सारे ऑपरेशंस बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं इन कीवर्ड्स के साथ। तो यू कैन सी हेयर strlen राउंड ब्रैकेट्स, दिस इज स्ट्रिंग लेंथ। ये क्या करेगी? कैलकुलेट्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देन इज strcpy राउंड ब्रैकेट्स स्ट्रिंग कॉपी, कॉपी करेगी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में। strcat स्ट्रिंग कंकैटेनेट राउंड ब्रैकेट्स, ये करेगी जॉइन द टू स्ट्रिंग्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था हेलो आई एम जॉनी, तो ये दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, इनको आप कंबाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग कंकैटेनेट। देन इज स्ट्रिंग कंपेयर strcmp। ये कुछ कीवर्ड्स हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर एज इट इज, इनको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग डॉट एच में इसी तरीके से डिफाइंड है। तो आप ये नहीं कर सकते आपने स्ट्रिंग लेंथ लिखा है तो len की जगह आप पूरा लेंथ लिख दो, या स्ट्रिंग की str की जगह पूरा स्ट्रिंग लिखो, तो फिर वो फंक्शन वर्क नहीं करेगा। यू हैव टू रिमेंबर दीज एज इट इज, इसी तरह से आपको इनको याद रखना पड़ेगा। तो strcmp फॉर स्ट्रिंग कंपेयर, दो स्ट्रिंग्स को अगर आप कंपेयर करना चाहते हो, किसकी लेंथ बड़ी है किसकी लेंथ छोटी है, राइट? तो इस तरह से अगर आप करना चाहते हो तो इसको यूज कर सकते हो स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन को। स्ट्रिंग लोअर lwr, लोअर पूरा लोअर नहीं है, lwr को यूज कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म्स को यूज कर रहे हैं। ऐसे ही स्ट्रिंग अपर upr, राइट? तो स्ट्रिंग लोअर जो भी आप स्ट्रिंग एंटर करोगे उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगी। स्ट्रिंग अपर जो भी आप लिखोगे, जो भी आप कंटेंट एंटर करोगे उसको अपर स्ट्रिंग अपर केस लेवल में कन्वर्ट कर दे। आपने देखा होगा कई बार कोई फॉर्म्स अगर आप फिल करते हो ऑनलाइन, तो उसमें आप किसी भी तरीके से आपका नेम एंटर करो या कोई भी चीज आप कंटेंट्स एंटर करते हो तो वो ऑटोमेटिकली अपर केस में हो जाते हैं या लोअर केस में हो जाते हैं, जनरली अपर केस में हो जाते हैं। सो दिस इज कि ये वाले फंक्शंस उनकी बैकग्राउंड पे जो उनकी प्रोग्रामिंग हो रखी है उसमें ये वाले फंक्शंस जो है वो यूज होते हैं, राइट? तो अभी यहाँ पे एक और प्रोग्राम देखते हैं, सेम वही प्रोग्राम जिसमें हमने स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए वाइल लूप लगाई थी। तो अब यहाँ पे देखो वॉइड मेन, यहाँ पे हम तीनों वो एंटर करेंगे stdio.h, conio.h और string.h। अब तीनों आपको एंटर करने पड़ेंगे तभी आपका ये प्रोग्राम वर्क करेगा, अदरवाइज वो देगा अननोन एरर कि हमें पता ही नहीं है कि ये स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन क्या है, राइट? अगर आप string.h नहीं एंटर करवाओगे लाइब्रेरी फंक्शन में, राइट? तो कैरेक्टर इनपुट स्ट्रिंग 50 इंट लेंथ, अब आई की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लेंथ कैलकुलेट करनी है। क्लियर स्क्रीन लगाया, एंटर योर टेक्स्ट, गेट्स इनपुट स्ट्रिंग लेंथ, लेंथ में क्या आ जाएगा? इक्वल टू, लेंथ इज इक्वल टू, बार बार प्लस प्लस नहीं करना पड़ेगा, वाइल लूप में नहीं जाना पड़ेगा, उसको नल कैरेक्टर चेक नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करने की जरूरत, सिंपली लिखा लेंथ। लेंथ की वैल्यू किसके इक्वल है? स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन लगाया, strlen स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन लगाया, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया इनपुट स्ट्रिंग, सेमीकोलन डाला, printf लेंथ ऑफ योर टेक्स्ट इज परसेंटेज डी कैरेक्टर्स, लेंथ गेट ch फिनिश। सिर्फ वो जो आपका 10-12 लाइंस का प्रोग्राम था वो 5-6 लाइंस में फिनिश हो गया, राइट? सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। इसी तरीके से जैसे आप कॉपी पेस्ट किया था, कॉपी पेस्ट में भी आपने बहुत लंबा प्रोग्राम बनाया था, पहले कॉपी अलग से बनाया, पेस्ट अलग से बनाया, आई अलग से बनाया, फॉर लूप अलग से लगाई, वो सारा कुछ चेक किया। अब इसमें क्या है, ये बेसिक चीजें तो ऐसे ही रहेंगी, एंटर योर नेम, ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो कॉपी पेस्ट करने के लिए फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली लिखिए strcpy स्ट्रिंग कॉपी टारगेट फाइल कॉमा सोर्स फाइल। टारगेट और सोर्स फाइल का क्या मतलब है? टारगेट फाइल मतलब जिस फाइल में जिस वेरिएबल में आप अपनी
फाइल को अपने कंटेंट्स को पेस्ट करना चाहते हो। सोर्स फाइल का मतलब जिसमें से पेस्ट करना चाहते हो, तो पहले टारगेट फाइल लिखोगे। ये चीज याद रखनी है हमेशा, चाहे आप स्ट्रिंग कॉपी कर रहे हो, चाहे आप स्ट्रिंग कंपेयर कर रहे हो, चाहे आप स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर रहे हो, टारगेट फाइल आएगी पहले, सोर्स फाइल आएगी बाद में, राइट। बाकी सारा प्रोग्राम बिल्कुल सेम, वो जो वाइल लूप और जो फॉर लूप वाले जो बीच में हमने 4-5 लाइंस के प्रोग्राम्स बनाए थे, उनको सिर्फ एक फाइल लाइन में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। सो द नेम इज पेस्टेड एज पुट्स पेस्ट गेट ch, दैट्स इट, फिनिश, राइट। इसी तरीके से अगर आप स्ट्रिंग कंकैटिनेट करना चाहते हो, राइट, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम क्या है, कॉलेज है, ठीक है, मिडिल नेम क्या है, ऑफ अप्लाइड, लास्ट नेम क्या है, से बिजनेस, कॉलेज ऑफ अप्लाइड बिजनेस। तो ये क्या है, तीन हमने अलग अलग एरेज बनाए, ठीक है। कॉलेज ऑफ अप्लाइड बिजनेस क्लियर क्रिएट किया ताकि पुराना कुछ भी क्लियर हो जाए। फिर स्ट्रिंग कंकैटिनेट किया, फर्स्ट नेम कॉमा मिडल नेम। अब फर्स्ट नेम सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा मिडल नेम। फिर पुट्स किया फर्स्ट नेम, उसको शो कर दिया। फिर क्या किया हमने, मतलब उसको पुट्स फर्स्ट नेम में हमने उसको डाल दिया, जो मतलब उसका आउटपुट है उसको हमने इस इन दोनों को कंबाइन किया और उनको किस में डाल दिया, फर्स्ट नेम में। वो चला गया ऑटोमेटिकली, ये सोर्स वाला टारगेट में ऑटोमेटिकली चला गया। इसके बाद ये आ जाएगा, राइट। फिर स्ट्रिंग कंकैटिनेट किया, अब फर्स्ट नेम में क्या चीज आ गई, कॉलेज ऑफ अप्लाइड आ गया, और लास्ट नेम में क्या है, बिजनेस। तो अब उनको इकट्ठा फिर दोबारा से इकट्ठा कर देंगे और प्रिंट करवा देंगे। पहली बार क्या प्रिंट होगा, कॉलेज ऑफ अप्लाइड, दूसरी बार क्या प्रिंट होगा, कॉलेज ऑफ अप्लाइड बिजनेस, क्योंकि वो उसमें लास्ट नेम भी एंटर हो गया। अब क्योंकि तीन चीजें थी, तो अब तीन चीजें तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, सोर्स और टारगेट दो ऑप्शंस हैं सिर्फ, राइट। तो इसलिए यहाँ पे दो ऑप्शंस जो हैं उसी में वो वर्क करेगा। तो इसलिए पहले हमने पहली दो ऑप्शंस ले ली, फिर उसके बाद जो यहाँ का जो डेटा था इसमें एड अप होके कंकैटिनेट होके वो स्ट्रिंग इसी में ही सेव हो गई दोबारा से, राइट। तो अब उसी को हमने यूज किया, साथ में लास्ट नेम को भी ऐड कर दिया, राइट। तो दिस वाज द फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग कंकैटिनेट, राइट। उसके बाद आ गई स्ट्रिंग कंपेयर। अब कंपेयर में क्या है, मान लो हमने दो स्ट्रिंग्स ली, स्ट्रिंग 1 इज फॉर से 30 कैरेक्टर्स, 30 साइज है उसका, स्ट्रिंग 2 का से 40 साइज है। तो अब लिया हमने यहाँ पे डिफरेंस, अब डिफरेंस कैलकुलेट करना है। कंपैरिजन का क्या मतलब है, कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है कौन सी स्ट्रिंग छोटी है, तो डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब डिफरेंस में क्या कर रहे हैं, क्लियर स्क्रीन किया, printf फर्स्ट स्ट्रिंग एंटर करो, फिर सेकंड स्ट्रिंग एंटर करो। पहले फर्स्ट वाली को गेट कर लिया स्ट्रिंग 1 में, फिर सेकंड वाली को गेट कर लिया स्ट्रिंग 2 में। अब डिफरेंस क्या है, स्ट्रिंग कंपेयर str1 str2, इन दोनों को आपस में कर दिया कंपेयर। अब कंपेयर करेंगे तो कौन किसके साथ माइनस होगा, स्ट्रिंग 1 की जो लेंथ है उसमें से हम माइनस करेंगे स्ट्रिंग 2 की लेंथ को। स्ट्रिंग कंपेयर बेसिकली क्या कर रहा है, स्ट्रिंग 1 में मान लो 10 कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग 2 में फॉर एग्जांपल 12 हैं, तो वो क्या करेगा 10 माइनस 12 करेगा। अब 10 माइनस 12 करेगा तो डिफरेंस में क्या आएगा, -2, राइट। तो -2 आएगा, तो इसका मतलब हमने अब दो कंडीशंस लगा दी कि इफ डिफरेंस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब स्ट्रिंग 1 बड़ी है स्ट्रिंग 2 से। एल्स इफ डिफरेंस की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब स्ट्रिंग 1 छोटी है स्ट्रिंग 2 से। स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग स्काई वैल्यू डिफरेंस बाय कितने, कितनी वैल्यू वो भी दिख सकते हैं हम यहाँ पे, कितने डिफरेंस है, स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2 कॉमा डिफरेंस, ठीक है। देन अदरवाइज अगर वो छोटा होगा तो स्ट्रिंग 1 इज स्मॉलर देन स्ट्रिंग 2, जो भी उसका नाम होगा स्ट्रिंग का वो स्ट्रिंग लिख देंगे ना यहाँ पे, बाय अ स्काई वैल्यू डिफरेंस ऑफ परसेंटेज डी। तो डिफरेंस कितना है, 2 का 3 का, कितने से बड़ी है या कितने से छोटी है, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। अदरवाइज दे आर सेम, इट इज सेम एज, अगर आपने दोनों में सेम स्ट्रिंग्स एंटर करी हैं, सेम स्ट्रिंग्स का मतलब ये नहीं है कि आपने दोनों में राम और राम ही लिखा है। स्ट्रिंग का मतलब है अगर आपने एक में लिखा है राम और दूसरी स्ट्रिंग में लिखा है अनु, तो इनकी लेंथ सेम है, तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट कर रहा है। कंपैरिजन में इट इज नॉट कैलकुलेटिंग कि आपने लिखा क्या है, राइट, कि अगर राम और राम लिखा है तभी वो इक्वल होगा, 3 और 3 इक्वल, ओके। तो उसने इस तरह से कंपैरिजन करना है। तो अदरवाइज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स इज सेम, तो स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2 दोनों की लेंथ सेम है। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन को सिर्फ यूज करके आप ये कंपैरिजन का काम भी कर सकते हैं।
उसके बाद there is an option of string reverse, STRREV. स्ट्रिंग ली, क्लियर स्क्रीन किया, इनपुट करी, स्ट्रिंग गेट्स करी, फिर स्ट्रिंग रिवर्स में उसी स्ट्रिंग को डाल दिया और रिवर्स स्ट्रिंग. अब रिवर्स स्ट्रिंग का क्या मतलब है कि मान लो आपने एंटर किया वर्ड कंप्यूटर, ठीक है, तो वो रिवर्स स्ट्रिंग में क्या करेगा, उल्टा स्टार्ट करेगा, RETUPMOC, इस तरह से उल्टा. कंप्यूटर, पहले आपने कंप्यूटर लिखा था, अब वो उसका रिवर्स जो भी होगा उसको शो करेगा रिवर्स स्ट्रिंग में. ठीक है, तो इसी तरह से एरे ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, 2D एरेज ऑफ कैरेक्टर्स हैं, इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, सो यू डोंट हैव टू यूज दिस, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रिंग फंक्शंस, और कैसे आप उन स्ट्रिंग फंक्शंस को यूज कर सकते हो. स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस हैं डिफरेंट डिफरेंट, और उनके यूज से आपने देखा कि आपके बड़े बड़े प्रोग्राम्स छोटी छोटी प्रोग्राम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, जहाँ पे आप 4 5 लाइन्स 6 लाइन्स आपको यूज करनी पड़ रही थी, वाइल लूप लगानी पड़ रही थी, फॉर लूप लगानी पड़ रही थी, एक्स्ट्रा एक इंटीजर लेना पड़ रहा था, या एक्स्ट्रा कुछ लाइंस लिखनी पड़ रही थी आपके प्रोग्राम के अंदर, वो सारा कुछ फिनिश हो गया. किस वजह से, जब आपने स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस को यूज करना स्टार्ट किया. तो स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग कनकैटिनेट, स्ट्रिंग रिवर्स, स्ट्रिंग लोअर, स्ट्रिंग अपर, कुछ भी कोई भी आप यूज कर सकते हो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस, जो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट. तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रिंग्स and the string handling functions and how the strings are being utilized in the programs, right. So this was all for today. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye.